Okay, so I'm going to start my class. Yes, ma'am. Sure. So, Assalamu alaikum class. I hope you all are doing great and you're having a great time at your home, and especially you all are safe at your home, your family is safe. Okay, so हमारा जो last lecture था, it was a fantabulous session and I was so happy from all of you. ठीक है, जो आप लोगों का feedback था, आप लोगों का response था, the way you picked up things and the way you practiced, I was so happy. So keep it going and keep practicing and keep practicing. So let's start our third lecture. So today we are going to study use of models and use of verb questions. Okay जी. Okay, so let's see what are actually model verbs. हमारे model verbs जो हैं वो क्या होती हैं? Model verbs या model words. ठीक है जी. Model words are generally used in combination with other verbs and are used to change the verb's meaning to something different from simple fact. Models showing the mood of the verb express possibility, ability, prediction, permission and necessity. So मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके क्या शो करते हैं? मॉडल्स आपके जो ओरिजिनल वर्ब्स होते हैं उनके साथ एडिशनल हेल्प के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। उन हेल्पिंग वर्ड्स वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, जिनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट मॉड, तो ये जो मॉडल्स होते हैं आपके, दे एक्चुअली शो द मूड ऑफ द वर्ब, ठीक है, कि आपका जो वर्ब है, आपका जो एक्चुअल वर्ब है, उस वर्ब में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, प्रिडिक्शन एग्जिस्ट करती है, परमिशन एग्जिस्ट करती है, या नेसेसिटी या ज़रूरत एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। So before we move to modal verbs, let's see कि हमारे auxiliary verbs क्या होते हैं. Auxiliary verbs help the main verb to describe an action. ठीक है, action मतलब आपका जो actual कोई काम हो रहा है या कोई आपका fail हो रहा है या कोई आपका verb हो रहा है. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. ठीक है, वो आपका action जो है वो past में हो सकता है it's happening in the past, हो सकता है it's happening in the present, और हो सकता है it will happen in the future. Okay, तो auxiliary का मतलब क्या होता है? auxiliary word कहाँ से निकला है? auxiliary means actually additional support और extra help, ठीक है। so अब इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि auxiliary verbs actually mean additional verbs और extra verbs और helping verbs. ओके जी, तो ये सारे के सारे जो हैं these are all your helping verbs, auxiliary verbs. अब ठीक है, इन्हीं auxiliary verbs में कहीं ना कहीं आपको आपके model verbs भी नजर आएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट में आप ये यूज करते हैं एम आर, ठीक है, डू, डज, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, शेल, शुड, वाज, वर, विल, वुड, मे, इज, हैव टू, ये सब के सब जो हैं, ऑल ऑफ दीज आर योर ऑक्सिलरी वर्ब्स। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? एडिशनल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, एक्स्ट्रा वर्ब्स। ओके जी। Okay, now let's look at the modal verbs. What are our modal verbs? Modal verbs are a special kind of helping verbs, ठीक है, helping verbs की एक special kind होती है। A modal verb helps the main verb to express the mood of the subject. अब subject क्या होता है ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। I am a subject, you are a subject, ठीक है। I, we, she, he, ये सब क्या होते हैं? subjects होते हैं, ठीक है। so the आपका जो modal verb है वो आपके main verb और आपके subject के mood को express करता है, ठीक है। उसी टाइम पे what it indicate, it shows possibility, persuasion, किसी को मायल करना, ability, किसी चीज का होना, willingness, कुछ करना, daring होना, etc. ओके जी। Now, what are your modal verbs? आपका can, could, will, would, may, might, must, should. These all are your modal verbs. Now, let's see how your modal verbs or your modal verbs help the main verb. ठीक है? For example, आप देखें कि आपका यहाँ पे main verb जो है blue में highlighted है. It says eat. ठीक है, अब आपका साथ अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हम ऐड कर दें could,
तो पूरा वर्ब फ्रेज बन जाएगा कुड ईट, ठीक है, आई कुड ईट। इसी तरह आपका मेन वर्ब है लिसन, सुनना, इसके साथ आप माइट लगा दें आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तो इट कैन बिकम माइट लिसन, आई माइट लिसन टू यू और यू माइट लिसन टू मी। इसी तरह आपका मेन वर्ब है ईटन, ठीक है जी, ईटन जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, और हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और हैज़ हैव हैड जो हैं आपके, ये हमेशा आपके परफेक्ट, ठीक है, पहले तो आपके प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल, उसके बाद सेकंड पे आपका कंटिन्यूस टेंस आता है, थर्ड पे आपका परफेक्ट टेंस आता है, और फोर्थ पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका है कुड हैव, ठीक है, कुड हैव ईटन, सो इट कैन बिकम द सेंटेंस कुड बी इट कुड हैव, आई कुड हैव ईटन द ब्रोकली, ओके जी। इसी तरह लिसनिंग है, ठीक है, तो ये आपका लिसनिंग जो है ये आपका प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, जिसमें आपका वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए, हैव बीन आ जाए, हैव बीन और आईएनजी का कॉम्बिनेशन हो, तो वहाँ वो आपके हमेशा जो हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है, कर रहा था, ठीक है, कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये हेल्पिंग वर्ब साथ इसके ऐड हो जाएगा, माइट हैव बीन लिसनिंग, आई माइट हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। So that's how your modal verbs, ठीक है, help your main verbs, and then you can see your actual verb phrase. So there are some examples of perfect modal verbs, ठीक है, कि किस किस तरह से आपके modal verbs जो हैं वो examples में use हो सकते हैं। For example, would have, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इन सारे सेंटेंसेस में आपके साथ हैव यूज़ हो रहा है, तो हैव जो है आपका हमेशा जो है हैज़, हैव, हैड, ये हमेशा आपका सिंपल हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये आपका परफेक्ट आपके टेंसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल परफेक्ट हो जाए, पास्ट परफेक्ट हो जाए और फ्यूचर परफेक्ट हो जाए। हैज़, हैव, हैड जो हैं आपके उनमें आते हैं, और क्या होता है, हैज़, हैड, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है जी। For example, let's see would have. If I had guessed the future, I would have taken some precautions against what would happen. अब देखिए इसमें आपके एक यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, मॉडल वर्ब, और एक यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात हो रही है कि अगर मुझे पता होता फ्यूचर का, ठीक है, या मैं पता लगा सकता, तो मैंने कुछ प्रिकॉशंस ले ली होती, मैंने एहतियात की होती, और जो कुछ अभी हुआ है वो ना होता, ओके। इसी तरह जो आपका कुड हैव है, इसी तरह आप कुड हैव को भी सेंटेंस में देख सकते हैं, ही कुड हैव टेकन द फ्लाइट, ठीक है, हो सकता है उसने फ्लाइट ली हो। इसी तरह मे हैव पास द मैथ एग्जाम बट इट वाज इन स्पेनिश, ठीक है, इसमें आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, हम पास कर सकते थे मैथ एग्जाम लेकिन वो स्पेनिश में था। इसी तरह माइट हैव देखें, यू माइट हैव सोल्ड द कार इफ़ यू रियली नीडेड द मनी, अगर तुम्हें वाकई पैसों की ज़रूरत थी तुम अपनी कार बेच सकते थे, ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, सजेशन भी है, पॉसिबिलिटी भी है। तो ये सारे जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि आप फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, विलिंगनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की कंफर्मेशन आपको नहीं पता तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी जो जितने सारे मैं मूड्स बता चुकी हूँ, उन सब में आपके मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। और आपने डेली लाइफ में आप कोई शोज़ देखते होंगे, न्यूज़पेपर सुनते होंगे, या किसी को कॉन्वर्सेट करते हुए सुनते होंगे, तो ये आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं ये आपकी डेली लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, तो ये आपको भी यूज़ करने आने चाहिए। इसी तरह जो आपका शुड हैव का मतलब, शुड हैव आ जाता है, शुड हैव का मतलब होता है कि मस्ट, यू शुड और यू मस्ट हैव लिसन टू द टीचर, ठीक है। इसी तरह मस्ट हैव भी आपका, मस्ट हैव और शुड हैव एक ही तरह, एक ही मीनिंग साउंड करता है इनका, ठीक है। वी मस्ट हैव बीन क्रेजी, ठीक है, मस्ट और शुड का मतलब होता है लाजमन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह आप उनको नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, यू शुडंट हैव डन दैट, ही शुडंट हैव टोल्ड द लाई, नीडेंट टू हैव, यू नीड नॉट टू हैव बॉट इट, ये नीड
ये नीड एन के साथ जो एपोस्ट्रॉफ लगी हुई है इसका मतलब है नीड नॉट टू, ठीक है। यू नीड नॉट टू हैव बॉट इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास ये पहले से था तो मैं ये खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह ought to have, ठीक है जी, ought to have का मतलब ये होता है must, ठीक है जी। You ought to have warned me earlier, तुम्हें मुझे लाजमी पहले वार्न कर देना चाहिए था। अब इसमें आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि आपका जो ought to है इसके साथ to लग रहा है, बाकी आपके किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जो है वो to नहीं लग रहा। ओके जी, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। can, could, ought to, should, will, would, must, shall, might, may, and today we are going to learn them all. Okay, now let's start from your first modal verb, that is can. ठीक है, तो जी कैन किस लिए यूज़ होता है? कैन हम सबको पता है, कोई भी हमने एबिलिटी को शो करना हो कि हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू डू समथिंग, I can make jewelry or I can cook, ठीक है जी। I can speak in English, I can write in English, etc. इसी तरह उसके अलावा आपका can जो है वो परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर बाथरूम और कैन आई लीव नाउ, कैन आई कम इन, ठीक है जी। उसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए भी और सजेशंस के लिए भी आपने कैन अक्सर यूज़ किया होगा। कैन आई हैव द बिल, कैन आई हैव मोर नैपकिन्स। तो देखिए यहाँ पे कैन जो है उसके 3 से 4 यूजेस आ गए। पहला एबिलिटी आ गया, दूसरा परमिशन आ गया, थर्ड आ गया रिक्वेस्ट या कोई सजेशन। ओके जी, इसके बाद है आपका कुड, ठीक है जी। कुड कुड जो है वो कैन की एक्चुअल में पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन इट डजेंट मीन कि कैन जो है वो कुड की पास्ट फॉर्म है। तो कुड जो है हमेशा आपने पास्ट का कोई टेंस यूज़ करना होगा कि आपने एबिलिटी बतानी होगी, तो सिर्फ उसके लिए कुड सिर्फ यूज़ नहीं होता। बिल्कुल, आपने अगर पास्ट में कोई एबिलिटी बतानी है तो उसमें कुड यूज़ होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुड जो है उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं एंड यू मस्ट नो दैट। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली एबिलिटी जो कि आप पास्ट में अपनी कोई एबिलिटी बता रहे हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है जी, मैं स्विम कर सकता था जब मैं यंग था। उसके अलावा आपका आपने किसी से परमिशन लेनी हो पोलाइटली तो उसके लिए भी कुड आप यूज़ कर सकते हैं। कुड आई टेक दिस जैकेट विद मी, यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, एट्सेट्रा। इसी तरह आप पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड को यूज़ कर सकते हैं। दिस प्लान कुड रियली वर्क आउट और कुड इट बी ट्रू, ठीक है जी। तो यानी कि पॉसिबिलिटी भी आ गई, परमिशन आप ले रहे हैं बहुत पोलाइटली, इनफॉर्मली या फॉर्मली, तो उसमें भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं। और एबिलिटी तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कैन और कुड कहाँ कहाँ और यूज़ हो सकते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स। और जब हमें कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना हो और अभी उनके डिफरेंसेस पता चल जाएं तो हमारे लिए चीज़ों को लर्न करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों ऐसा ही है? आई थिंक सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, जैसा कि मैंने बताया आपको, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कैन इज़ यूज टू टेल एबिलिटी प्रेजेंट में, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, परमिशन इनफॉर्मली, ठीक है। हमने जिस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज़ किया था, एक्सप्रेशंस यूज़ किए थे, उसी तरह अगर आपने किसी से इनफॉर्मली परमिशन लेनी है तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करनी है इनफॉर्मली तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। किसी से हेल्प लेनी है आपने तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ अलाउ करना है या नहीं करना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के इसमें लिखा हुआ है। आई कैन स्पीक चाइनीज़, पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय लैपटॉप। ओके जी, ठीक है। वन रॉन्ग मूव कैन लूज द होल गेम, परमिशन, if you need you can take my car, can you give me a hand, how can I help you, etc. ठीक है जी। इसी तरह आपकी कुड जो है आपका पास्ट में एबिलिटी को शो करता है। ओके जी, पॉसिबिलिटी पास्ट में, परमिशन पोलाइटली, रिक्वेस्ट पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब आप इसको
किसी से बहुत महज़्ज़ब तरीके से पूछना चाहते हैं, बहुत ठीक है सोफिस्टिकेटेड होकर पूछना चाहते हैं डिसेंट तरीके से, तो आप इसमें कोड यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी को सजेशन देना है, ठीक है, उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं। किसी कंडीशन के लिए भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका मे आ जाता है, ठीक है जी। मे इज़ ऑब्वियसली मे इज़ यूज टू आस्क फॉर फॉर्मल परमिशन। आपने किसी से फॉर्मल परमिशन लेनी हो, ठीक है। इनफॉर्मल परमिशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कैन यूज़ हो सकता है। किसी से आपने फॉर्मल परमिशन लेनी है तो आपने मे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मे आई कम इन, मोस्टली हम अपने टीचर्स के रूम में जाते हैं, या हम अपने कोलीग्स या अपने बॉस के उनके कैबिन में जाते हैं, तो वी आस्क मे आई कम इन, ठीक है जी। इसी तरह मे आई से समथिंग नाउ, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं। मे आई आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मल आपने परमिशन लेनी है तो उसमें मे यूज़ करते हैं। इसी तरह यू वांट टू सजेस्ट समथिंग दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है, उसके लिए आप मे यूज़ कर सकते हैं। शी मे एग्री विद दिस प्लान, दे मे नॉट बी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड, एटसेट्रा। इसी तरह माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ यूज टू सजेस्ट अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी देन मे डज। ही माइट हैव फिनिश्ड इट, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। I might go see a doctor, I might not come this time, it might be right, ठीक है। तो ये सारी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। स्मॉलर पॉसिबिलिटी, लार्जर पॉसिबिलिटी। मे जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि मे किस किस्म की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। शी मे एग्री विद दिस प्लान, ठीक है, लार्जर पॉसिबिलिटी, ठीक है। जहाँ पे आपको कम पॉसिबिलिटी यानी कि माइनर चांसेस हैं, वहाँ पे आप माइट यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। इसी तरह आपका मस्ट जो है, मस्ट इज यूज फॉर्मली, और मस्ट का मतलब होता है लाजमी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस वीक, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी। एंड और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो समथिंग दैट इज़ वेरी लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आप मेटाफोरिकली यूज़ करते हैं किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से ही मस्ट बी अ जीनियस, मतलब कि आप उसे एक जीनियस, एक बहुत अक्लमंद इंसान से किसी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। या यू मस्ट बी जोकिंग, आप लाजमी मजाक कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बात है, आई एम 100% श्योर कि ये मजाक ही हो सकती है, ठीक है। इसी तरह शी मस्ट बी वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी होगी, ठीक है जी। इसी तरह फिर आपका आ जाता है जी विल और वुड, शेल और शुड। विल आपका यूज होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, टू से व्हाट वी बिलीव विल हैपन। विल यूज होता है कि हमें पूरा यकीन है कि ये फ्यूचर में होना ही होना है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इट विल हैपन, ठीक है। आई विल टेक क्लास टुमारो, ठीक है। वी विल हैव आवर 5th लेक्चर ऑन वेडनेसडे, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबिलिटी, इट विल हैपन, ठीक है, हमें पता है कि ये होना है, शेड्यूल्ड है, वट एवर, ठीक है। उसके अलावा टू टॉक अबाउट what people want to do or are willing to do, ठीक है। I will go to office tomorrow, example। इसी तरह promises और offers के लिए भी I will buy you a car, I will buy you a phone, और I will deliver a lecture, etc, ठीक है। उसके अलावा to talk about the past। अच्छा, वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। वुड ऑब्वियसली अगर कोई पास्ट की कोई चीज़ है, पास्ट में कोई आपने करना था कुछ, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वुड यूज़ हो सकता है। उसके अलावा आपकी पोलाइटनेस के लिए भी आपने परमिशन लेनी है, उसके लिए भी वुड यूज़ हो सकता है। इसी तरह कोई पॉसिबिलिटी है, कोई प्रिडिक्शन है, ठीक है, कुछ आपने इमेजिन किया हुआ है कि वो ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो शायद, तो उसमें भी आप वुड यूज़ कर सकते हैं। To talk about hypotheses, things that are imagined rather than true, ओके जी। फिर आ जाता है जी आपका शेल। शेल आपका यूज़ होता है, ठीक है जी, जिस तरह आपका मस्ट यूज़ होता है किसी चीज़ के लिए, कि मस्ट आपने करनी है, किसी कोई चीज़ लाजमी करनी है, तो उसके लिए आपका शेल यूज़ होता है, ठीक है। फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू शेल ओबे द रूल्स, मतलब आपको लाजमी, जिससे हम लोग एप्लीकेशन में भी लिखते हैं आई शेल बी वेरी गुड, आई विल नहीं लिखते, हम शेल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं और उसमें हमने फॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग
सीनियर पर्सनस को लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम हमेशा एंड पे विल नहीं यूज़ करते, हम हमेशा एंड पे शेल यूज़ करते होते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन देना है आपने, तो उसके लिए भी शेल यूज़ कर सकते हैं, शेल वी डांस। तो अब इसमें आप काफ़ी सारे देख रहे होंगे, काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स हैं और बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं, सजेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, परमिशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब आपने उसको कहाँ यूज़ करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी सिचुएशन देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, तो आपने भी उसको, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कहती हूँ शैल आई स्टार्ट माई क्लास, ठीक है, इट्स लाइक अ सजेशन, शुड आई स्टार्ट इट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने अपनी सिचुएशन देखनी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल वर्ब फिट हो रहा है, आपने वहाँ उसको यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह आपका शुड जो है वो ओपिनियन के लिए यूज़ होता है, किसी सजेशन के लिए यूज़ होता है, किसी आइडिया के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ओपिनियन, व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट। ठीक है, इसी तरह कोई सजेशन आपने देना है, कोई मशवरा दे रहे हैं, अपना कोई आइडिया बता रहे हैं, तो इस तरह आप उसमें भी शुड यूज़ करते होंगे। ठीक है, आपने बहुत बार किया भी होगा, ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज़, ही शुड नॉट बी डूइंग दिस, he should go to parlor, etc. इस तरह की सारी phrases। इसी तरह ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि will और would किस तरह कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। will आप कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनफॉर्मली, तो उसमें will यूज़ हो सकता है, will you help me। पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो you can ask would you help me। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कि अगर आपका बहुत ही इनफॉर्मल सा टेंस है, इनफॉर्मल सेंटेंस है, तो उसमें आप will यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वुड यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल के लिए भी ऑब्वियसली नेगेटिव फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ही वोंट हेल्प मी। ठीक है, अगर पास में आपने रिफ्यूज़ल बताना है कि ही वुडंट हेल्प मी, कि उसने मेरी मदद नहीं की थी। ठीक है, उसने मेरी मदद नहीं की। आई वेंट टू हिम एंड ही वुडंट हेल्प मी, मैं गया तो उसने मेरी मदद नहीं की, एटसेट्रा। इसी तरह प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप कुछ ऑफर कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी विल यूज़ कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, इसी तरह पास में आप किसी ने किसी को कुछ ऑफ़र किया था तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे देखें वुड और आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, हो सकता है मैंने तुम्हारी मदद की होती, शायद मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। इसी तरह आपका कंडीशन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम। और कंडीशनल में आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, अब देखें कि इसमें किस तरह उन्होंने आपका जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसको नीचे यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह अगर मेरे पास बोट होती, ठीक है, पास की बात हो रही है, अगर मेरे पास बोट होती मैंने दुनिया घूम ली होती। ओके जी। इसी तरह फ्यूचर के लिए ही विल ट्यूटर मी नेक्स्ट मंथ, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, उसमें आप ये यूज़ करते हैं ही प्रॉमिस्ड मी, ही वुड ट्यूटर मी, एटसेट्रा। अच्छा, मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हुए देयर आर सम रूल्स विच यू मस्ट लर्न, विच यू मस्ट फॉलो। ठीक है, रूल नंबर 1 इज़ कि जब भी आप अपने मॉडल वर्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं तो जो आपके नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में जिस तरह आप ही शीट के साथ वर्ब के साथ एस यूज़ करते हैं, तो इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होता है। इसी तरह जब आप पास्ट प्रेजेंट का जो टेंसेस यूज़ करते हैं, आप उनमें ईडी लगा देते हैं, डी लगा देते हैं वर्ब के साथ, तो इस तरह जब आप मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं तो माइट के साथ, कुड के साथ ईडी वाला और डी वाला कोई हिसाब नहीं होता है। ठीक है, और ना ही उनके साथ ईडी और डी वाला वर्ब्स के साथ होता है। ये बिल्कुल जिस तरह आपके बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये बिल्कुल उसी तरह यूज़ होते हैं। आपको वर्ब की फॉर्म्स का कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओट टू का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका कोई भी जो मॉडल वर्ब है उसमें टू साथ यूज़ नहीं होता सिवाय ओट के। ओट टू आपका वो वाला मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ भी टू यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसी तरह मॉडल वर्ब्स के साथ अगर आप मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं
तो आप उनके साथ जिस तरह कि मैंने बताया, जिस तरह आप कोई प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी आपने यूज़ करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस में आप आईएनजी यूज़ करते हैं, आप पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी यूज़ करते हैं वर्ब्स के साथ। तो आप जब मॉडल वर्ब जिस वर्ब में आपका यूज़ हो रहा है उसमें आपने जो ग्रामर वाले रूल्स हैं, टेंसेस वाले, वर्ब्स वाले के वर्ब के साथ एस लगता है, पास्ट वाले में ईडी लगता है, डी लगता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इस पे अप्लाई नहीं होती हैं, मॉडल वर्ब्स में अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मॉडल वर्ब से अपने कोई क्वेश्चन यूज़ करना है या आपने नेगेटिव फॉर्म यूज़ करनी है तो उसमें आप जिस तरह आपका पास्ट में डू और डज यूज़ होता है, सॉरी प्रेजेंट में आपका डू और डज यूज़ होता है, पास्ट में आपका डिड यूज़ होता है, ठीक है। वो आपका मॉडल वर्ब्स में अप्लाई नहीं होता है। सिंपल आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड आई सी दैट, ठीक है, इट्स इन द पास्ट, क्या मैंने वो देखा था, तो आप उसकी जगह सिंपल ये यूज़ कर सकते हैं, कुड आई सी दैट और वुड आई सी दैट और मे आई सी दैट। तो इसमें आपका देखें डिड यूज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह डू आई सी दैट, आई डू सी दैट। तो अगर आप इसमें मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आपका डू डिड जो है उनके साथ मॉडल वर्ब्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक सेंटेंस है, आपको उनमें डू डिड डज और मॉडल वर्ब्स इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। एंड सेम गोज फॉर द नेगेटिव क्वेश्चंस। ये नहीं हो सकता कि आपका डिड नॉट और मे जो है वो एक ही सेंटेंस में हो, डिड नॉट और कुड आपका एक सेंटेंस में हो, डिड नॉट और वुड आपका एक सेंटेंस में हो, डज नॉट और कैन आपका एक सेंटेंस में हो, ठीक है। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ द मॉडल वर्ब्स कैन और कुड के लिए आप देख सकते हैं, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, एबिलिटी बता रहा है। ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, ये मतलब कि उसकी पास्ट फॉर्म में आ गया कि जब वो 5 का था, ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच। इसी तरह कैन कुड में आ गया, कैन आपका ये परमिशन के लिए, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, ठीक है। अब ये दोबारा आपका कुड जो है वो परमिशन के लिए आ गया, कुड आई ओपन द विंडो। और मे आपका दोबारा परमिशन के लिए आ गया, मे आई बोरो योर डिक्शनरी। अब आपको पता होना चाहिए कि अब आप इनफॉर्मली कहाँ पूछ रहे हैं, मे ऑब्वियसली आप फॉर्मली में पूछ रहे होंगे, कुड आप पोलाइटनेस में पूछ रहे होंगे, कैन आप जो है वो इनफॉर्मल में पूछ रहे होंगे। इसी तरह आपका शुड है, ठीक है, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। सजेस्ट कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, यू शुड ट्राई टू लूज वेट। इसी तरह मस्ट और हैव टू मतलब लाजमी आपको ये चीज़ करनी चाहिए। I must memorize all of these rules about tenses, ठीक है, and you must memorize all of these tenses, all of these rules about modal verbs. You have to take off your shoes before you get into the mosque, ठीक है। ये लाजमी मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, मतलब ये लाजमी आपको करनी चाहिए, तो उसके लिए आपका मस्ट और हैव टू यूज होता है। इसी तरह आपका माइट, मे, कुड, कैन पॉसिबिलिटी के लिए, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज फॉर यू जो आप लोगों ने फिल करके मुझे सेंड करनी है ग्रुप में, एंड टेल मी आप लोगों का ग्रुप बन चुका है। और क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपके पिछले लेक्चर्स में भी देयर वर एक्सरसाइजेज गिवन एंड देयर वर वर्कशीट्स गिवन टू यू एंड आई हैवंट रिसीव्ड एनी, सो tell me if the group has been made and you are sending your queries there, you are sending your assignments there or not. So that's all for today. Okay, so we covered our model verbs today, and in the next lecture inshallah we will be covering our work questions, theek hai, use of, when, which, what, where, etc. So if you have any questions you can ask me in the comment section. Thank you. और अगर किसी को माइक ओपन करके कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन मस्ट बी रेलिवेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए और लेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ओके जी, ये किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है, जैसी आई सेंट यू। मैम आइल किस लिए यूज होता है? आई विल इज द शॉर्ट, आइल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई विल, ठीक है जी। आई विल ये जिन भी चीज़ों में आपके एपोस्ट्रॉफ ये जो ऊपर यूज होते हैं इनको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सुकड़ जाना, ठीक है। तो आपका जो लंबा वर्ड है उसको हमने छोटा कर दिया, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के छोटा कर दिया। गेट इट? No, we don't need to use grammar rules in modal verbs. I told you this rule.
ये आपका थर्ड लेक्चर है। ऑब्वियसली थर्ड लेक्चर में मैंने आपकी इंट्रोडक्शन लिया था, तो हमारा सेकंड के बाद ये प्रॉपर वाला थर्ड लेक्चर है। लेट का मतलब किसी को कोई चीज करने देने के लिए यूज होता है, लेकिन लेट आपका मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। लेट इज अ वर्ब। एपोस्ट्रोफ आपके बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस है जिनमें आपने देखा होगा, कांट, कैन नॉट की जगह CAN एपोस्ट्रोफ T यूज होता है, डोंट, डू नॉट की जगह डोंट यूज होता है, ठीक है। वोंट, वुड, मतलब कि वोंट का मतलब होता है विल नॉट, तो उसमें WONT कॉन्ट्रैक्शन इस तरह की यूज होती हैं, एक्सेट्रा। हैव यू सेंट इट इन द ग्रुप? आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है आप सब लोगों का? हाउ डू वी प्रैक्टिस मॉडल? जिस तरह मैंने आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज दी हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप व्यू करें, एग्जाम्पल्स को व्यू करें, ठीक है। रिव्यू करने के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे इनको, किसी से बात करते हुए यूज करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। जी, व्हाट्सएप ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट। इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप? जी, इनफ का मतलब होता है बस, ठीक है। इनफ इज इनफ। बस का मतलब है बस, बहुत हो चुका, ठीक है। और टू का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। ठीक है, इनफ का मतलब हो जाता है काफी है, टू का मतलब बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बैच में आप पढ़ाएंगी या मैम हदीका इस्लाम? क्या मतलब है जी नेक्स्ट बैच में? आई डोंट नो कि मैम हदीका जो है वो किस बैच को डील कर रही हैं। मेरे फ़िलहाल आप लोगों का बैच तो मेरे पास ही है, एंड आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट बैच। आप लोगों ने ली है मैम हदीका की क्लासेस किसी ने? ओके। जी, अगर आपको मैम हदीका से पढ़ना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। कैन के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उसमें एक एग्जाम्पल था। स्टडी मटेरियल्स आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आपको बेशुमार मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है जी। जी फरहान यूसुफ, आप कहाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओके, ये हमारे एन पे क्लास के सेशन में अनीला या हवा जो भी आती हैं, आई विल आस्क देम कि आपका ग्रुप उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है, और अगर नहीं बनाया तो अभी तक क्यों नहीं बनाया। कैन की एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, उसमें एक एग्जांपल था मोर नैपकिन्स। मोर लिखा है तो नैपकिन्स में एस क्यों है? ओ भाई, कमाल बात कर दीजिए तहसीन साहब आपने। नैपकिन, एक टिश्यू लेंगे आप तो उसे नैपकिन बोलेंगे, ज्यादा टिश्यू लेंगे तो उसे नैपकिन ही बोलेंगे ना भाई, नाउन है वो, वर्ब नहीं है। ये SES वाली चीजें जो है ये वर्ब के साथ यूज होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो ये तो आपका जिसे कहते हैं सिंगुलर प्लूरल है, वाहिद जमा है। वाहिद को आप वाहिद ही बोलेंगे और जमा को जमा ही बोलेंगे ना जी। ग्रामर ऐप की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, मैंने कभी एज सच यूज़ नहीं की हैं। लेकिन अगर रिटन के लिए आपको पंक्चुएशन के लिए तो देयर इज़ एन ऐप ग्रामरली, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपको किसी को फॉर्मल मैसेजेस सेंड करने हैं और अपनी मिस्टेक्स आपने फाइंड आउट करनी है और अपनी मिस्टेक्स आप जानना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दैट। उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, एंड आई डोंट नो अबाउट देम, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ, बट आई हैवंट यूज्ड एनी। राना वकार, मैंने शुड हैव टू, वुड हैव टू एंड कुड हैव टू, ठीक है। ये भी आपका किसी भी सेंटेंस के ऊपर मतलब के उन पे फोर्स करने के लिए ये यूज होता है। यू शुड हैव टू डू दैट। हैव का मतलब वहां पर कुछ करने के लिए, कुछ करने, शुड तो आपका मॉडल वर्ब आ गया, लेकिन हैव आपका वहां पे कुछ करने के लिए कि ये काम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कभी कभार कुछ सेंटेंस जो होता है वहां पे हैव का होना मस्ट होता है, ठीक है, कि उसके बगैर आपका वर्ब जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता है।
वैसे बहुत कम सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है आई कुड हैव टू, मतलब कि कुड हैव टू डजंट मेक सेंस वैसे, क्योंकि शुड हैव और वुड हैव इनके साथ जो है टू यूज़ नहीं होता है। शुड हैव यूज़ होता है, वुड हैव यूज़ होता है, कुड हैव यूज़ होता है। टू जो है वो सिर्फ ओ के साथ ही यूज़ होता है। जी वर्ब्स ऑफ पोसेशन भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। जी 3 मंथ 6 मंथ्स भाई, ये आपका फ़िलहाल तो जनाब कोर्स ये आपका 12 डेज़ का ही है। आई डोंट नो अबाउट 3 और 6 मंथ्स। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, एंड आई होप इट वाज इफेक्टिव, इट वाज यूजफुल फॉर यू, एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड यू विल प्रैक्टिस इट, एंड आई हैव गिवन यू एन एक्सरसाइज, काइंडली सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी। ठीक है जी। हवा, अनिला, एनीवन देयर? Yes, ma'am. I am here. ओके, सो टेल मी, इनका जो बैच 8 का 28 का आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाया है? मैम मैं पूछ के आपको बताती हूँ क्योंकि आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जस्ट अ मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। यस अगर मैम, इनका ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। ओके, तो अगर ग्रुप बना हुआ है तो आप उसमें अपनी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और क्यूरीज भी हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने कर दिए हैं सेंड, तो आई थिंक अभी तक मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हुई हूँ, या शायद मुझ तक इसलिए पहुँची नहीं है। तो आई विल आस्क देम टू ऐड मी टू देयर, ताकि मुझ तक भी आप लोगों की असाइनमेंट्स पहुँच जाएँ। Okay class, that's all for today. See you in the next lecture inshallah, and kindly prepare your exercise and submit it.